Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Prayagraj. So let's start with the set number 25 of this particular playlist. For that, an important update. We shall be starting two new batches for CAT 25 and 26 student. One is an offline batch which is scheduled to start from coming Tuesday, and another is an online batch which is scheduled to start from coming Wednesday. For more details, you can call us at this number or you can also write us a mail. So let's start with this set. So I've taken a logical DI set which is from previous year SimCats. So first pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this set says a trader has 4 shops in a city and only 4 type of product are sold in the 4 shop. Each shop sells each type of product. After analysis of the sales by value made by each shop in the last 1 year, the trader found the following pie diagram represents the distribution of annual sales among the 4 shops. It also represents the distribution of a sale of 4 products in each of the 4 shops, and it also represents the distribution of sale of each product across the 4 shops. Okay. Further, it is known that in last 1 year, for any product, the sale for the first shop is more than the sale second shop, which is in turn more than the third shop, which is in turn more than the fourth shop. In any shop, the sale of the first product is more than the second product, which is in turn more than the third product, and which is in turn more than the fourth product. Question भी देख लेते हैं एक बारी. In the last 1 year, the difference between the sales of the second product and the fourth is given. Find the sales. What percent of the total revenue has been generated from the sales of second product? If the second and the third shop stop selling the second and the third product in the present, what will be the total sales generated in the last 1 year? अच्छा, ठीक है. सो बेसिकली एक लॉजिकल डीआई का सेट है जहां पे हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, एंड पाई चार्ट में दिया क्या है उसको इंटरप्रिटेट कर लेते हैं. एक ट्रेडर है जो कि 4 अलग अलग स्टोर्स पे 4 अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहा है. वो बेसिकली अपने हर स्टोर पे यही 4 प्रोडक्ट बेच रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बेच रहा है. ठीक है. ओनली 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सोल्ड इन दी 4 शॉप्स, और ये चारों पे बिक रहा है. ठीक है. और ये जो पाई चार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रेवेन्यू जनरेटेड बाय द स्टोर दिखाता है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ द 4 प्रोडक्ट मेड इन ईच ऑफ द 4 शॉप्स. ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. मतलब 40% क्या है? चारों शॉप में कोई एक शॉप है जहां पे 40% का रेवेन्यू हुआ. मान लेते हैं कि 100 रुपए का रेवेन्यू हुआ था जनरेट चारों शॉप का मिला के. तो एक शॉप है जहां पे 40% हुआ, एक शॉप है जहां पे 20 हुआ है, एक है 30, एक है 10. सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से देयर इज वन प्रोडक्ट कॉल ए. उसने चारों शॉप पे मिला के लेट्स से 100 रुपीज की सेल करी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने. उसमें भी बात करें तो वो किसी एक शॉप पे 40 रुपए की सेल हुई है, किसी एक शॉप पे 20 रुपए की हुई है, किसी एक शॉप पे 30 रुपए की हुई है, किसी एक शॉप पे 10 रुपए की हुई है. तो ये मैं ऊपर वाले से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा हूँ. ये जो दो दो लाइन लिखी हुई है मैंने ये कॉम्प्रीहेंड करा कि रेवेन्यू का भी शेयर 43:1 में रेशियो में है, एंड प्रोडक्ट की सेल्स का भी, मतलब एक एक प्रोडक्ट की सेल्स का भी जो रेशियो वो भी 43:1 में अपने को दिया हुआ है. ठीक है. फर्दर जो चीजें दी गई है उसको पढ़ लेते हैं. For any product, the sales of the first shop is more than the second shop, which is in turn more than the third shop, which is in turn more than the fourth shop. ठीक है. अब अगर सेल की बात करें किसी भी प्रोडक्ट की, तो पहले शॉप पे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे शॉप, जो कि तीसरे शॉप से भी ज्यादा है और जो कि चौथे शॉप से भी ज्यादा है. यानी कि अगर हम टेक्निकली देखें तो वो ऐसा होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए शॉप के ऑर्डर, मतलब शॉप 1 2 3, शॉप 1 में सबसे ज्यादा है, शॉप 4 में सबसे लीस्ट है. In any shop, the sale of the first product is more than the second product, which is in turn more than the third product, and which is in turn more than the fourth product. ठीक है. So अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बना लेंगे एंड उस पे ना चीजों को फिट करना शुरू करते हैं. ठीक है. मैंने क्या करा, एक 4x4 का टेबल बना लिया जहां पे मैं लेट्स से मैं जूम कर लेता हूं कि यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आ गया, प्रोडक्ट 2 आ गया, प्रोडक्ट 3 आ गया और प्रोडक्ट 4 आ गया. सिमिलरली यहाँ पे मैंने ले लिया शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 और शॉप 4 मेरा. ठीक है. यहाँ पे मैंने राइट साइड पे, मतलब सॉरी कॉलम के लिए मैंने शॉप का नाम लिख दिया, प्रोडक्ट पे ये लिख दिया. ठीक है. अब मेरे को क्या क्या चीजें पता है, एक एक बार उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं. अ ट्रेडर हैज अ 4 शॉप, लिख लिया. 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर सोल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्टोर. तो S1 पे P1 भी बिक रहा है, P2 भी बिक रहा है, P3 भी बिक रहा है, P4 भी बिक रहा है. सेम फॉर S2, सेम फॉर S3, सेम फॉर S4. ठीक है. अच्छा, ईच शॉप सेल्स ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट. हर शॉप पे हर तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है. आफ्टर एनालिसिस ऑफ द सेल्स बाय वैल्यू मेड बाय ईच शॉप in the last 1 year, the trader found that the following pie chart represent the distribution of annual sales among the 4 shop.
मान लेते हैं कि भाई इस जो ये ट्रेडर है इसकी जो पूरी सेल है वो है 100x, ठीक है। मैंने 100x क्यों लिया, क्योंकि मेरे लिए x लेता तो 0.4x 0.2x 0.3x उसको फिगर आउट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता, तो मैंने क्या करा 100x ले लिया, ठीक है। क्योंकि एज्यूम ही करना है तो यार 100x करो ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, नहीं तो तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ा डेसिमल्स में जाएगी विच में बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल ऑफ 4 प्रोडक्ट, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा रहा है, मतलब चारों प्रोडक्ट की जो सेल है, चारों प्रोडक्ट की सेल है ये क्या होने वाली 4321 में होने वाली इन सम ऑर्डर, एंड फिर आगे लिखा हुआ है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट अक्रॉस दी 4 शॉप, ठीक है। ये भी अपने को पता चल रहा है। अब जो ये फर्दर पॉइंट है इसका यूज लेते हैं। फॉर एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का द सेल ऑफ द फर्स्ट शॉप इज मोर देन द सेकेंड शॉप विच इज इन टर्न मोर देन द थर्ड शॉप विच इज इन टर्न मोर देन द फोर्थ शॉप। किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल है ना पहले शॉप की वो ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट 1 में बात करें तो प्रोडक्ट 1 में सेल ज्यादा होगी प्रोडक्ट 2 शॉप नंबर 2 के कंपैरिजन में, शॉप नंबर 2 में सेल ज्यादा होगी शॉप नंबर 3 के कंपैरिजन में, और यहाँ पे ज्यादा होगी। और ये हर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर उतरेंगे टोटल सेल्स वो भी ऐसी ऑर्डर में आना चाहिए, यानी कि ये सबसे ज्यादा सेल वाला होगा, ये उससे कम वाला, ये उससे कम वाला, ये उससे कम वाला, ठीक है। यानी कि ये जो 40 30 20 10 है ये इसी तरीके से आना चाहिए, यानी कि 40%, 30%, 20% और 10%, यानी कि यहाँ पे 40x, 30x, 20x और 10x आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 यूज कर लिया। फिर से पढ़ा बता देना, फॉर एनी प्रोडक्ट द सेल ऑफ द फर्स्ट शॉप इज मोर देन द सेकेंड शॉप विच इज इन टर्न मोर। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो सेल है पहले शॉप पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू शॉप टू में ज्यादा है एज कम्पेयर टू शॉप 3। तो किसी भी प्रोडक्ट की बात हो रही तो सबका सम भी उसी ऑर्डर में आने वाला, और हमने को तो वो पता है कि शॉप 1 में क्या क्या रेशियो है, वो 40 30 20 10 का ले लिया हमने, ठीक है। इन एनी शॉप द सेल ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट इज मोर देन द सेकेंड प्रोडक्ट। अच्छा, किसी भी शॉप में जो सेल है पहले प्रोडक्ट की वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, प्रोडक्ट 2 के कंपैरिजन में, विच इज इन टर्न मोर देन प्रोडक्ट 3 विच इज इन टर्न मोर देन प्रोडक्ट 4। यानी कि इसका कॉलम का सम इससे ज्यादा होना चाहिए, ये वाला सम प्रोडक्ट 3 से ज्यादा होना चाहिए और ये प्रोडक्ट 4 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये भी इसी रेशियो में आ जाएगा 40%, 30%, 20% और 10%, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 40x, 30x, 20x और ये आ गया तुम्हारा 10x, ठीक। अगर हम बात करें कि शॉप नंबर 1 में प्रोडक्ट नंबर 1 कितना बिका है, ये बिका है तुम्हारा 16x। ये कितना बिका है शॉप नंबर 2 में, कितना बिका है 12x। शॉप नंबर 3 में कितना बिका होगा, ये बिका होगा तुम्हारा 8x। और शॉप नंबर 4 में कितना बिका होगा, ये बिका होगा तुम्हारा 10 ऑफ ये, यानी कि 4x। अब यहाँ पे देख लो 16 12 8 और 4, 16 और 12 कितना होता है 28, 28 और 8 होता है 36, 36 प्लस 4 होता है 40। सिमिलरली वी कैन इवेलुएट फॉर अदर्स आल्सो। शॉप नंबर 2 का आ जाते हैं 30 का है, यानी कि यहाँ पे आया होगा 12x, यहाँ पे आया होगा 9x, यहाँ पे आया होगा 3 2 6 6x, यहाँ पे आया होगा तुम्हारा 3x, ठीक है। 6 3 9 9 18 18 20 30 परफेक्ट। 20 पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आया होगा 8x, यहाँ पे आया होगा 6x, 4x और 2x, यानी कि 2 4 6 6 6 12 12 8 20, ठीक है। प्रोडक्ट नंबर 4 पे भी देख लेते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे आया होगा 4x क्योंकि इसका आधा ही है, 3x, 2x और x, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। अब मैंने क्या करा, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को यूज करके मैंने x के टर्म में निकाल दिया कि शॉप 1 पे प्रोडक्ट 1 की सेल कितनी होगी, प्रोडक्ट 2 की सेल कितनी होगी, प्रोडक्ट 3 की, प्रोडक्ट 4 की। सिमिलरली मैंने शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4 चारों शॉप का सारे प्रोडक्ट की x के टर्म में वैल्यूज निकाल दी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को यूज करके, ठीक है। और कुछ अपने को यहाँ पे कर नहीं सकते, बिकॉज लॉजिकल डीआई में हम बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक अपने को कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे जंप करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग एलिमेंट्स को इसने दे रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इन द लास्ट 1 ईयर द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ द सेकेंड प्रोडक्ट इन द फोर्थ शॉप, सेकेंड प्रोडक्ट इन द फोर्थ शॉप, यानी कि इसकी बात कर रहा है। अच्छा, in the last 1 year the difference between the sale of the second product in the fourth shop and third product in the first shop,
थर्ड प्रोडक्ट इन द फर्स्ट शॉप, यानी कि इसकी बात कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि कितना हो गया 5x। 5x का डिफरेंस दिया हुआ है 4,32,955। ठीक है, इससे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कितना आ गया, इधर डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया, 4,32 था ना, इधर आ जाएगा 5 8 जा 40, इधर आ गया 32 तो 5 6 जा 30, इधर आ गया आपका 29 तो आ गया 5 5 जा 45, 9 और 1 आ गया। ठीक है, अब आगे पूछा फाइंड द सेल्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट इन द सेकंड शॉप फॉर द सेम टाइम पीरियड। फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड शॉप, सेकंड शॉप यानी कि इसी की बात हो रही है, यानी कि इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको इंटू 12 मार देते हैं। कितना आ गया, 12 का वन टाइम 12 कैरी, 12 का वन टाइम 12 कैरी 1, ये देख शायद 10,39,000 आना चाहिए, बिकॉज 2 का यूनिट डिजिट यहीं पे आ रहा है। एक बार फिर भी निकाल लेते हैं, 12 का वन टाइम 12 कैरी 1, 12 9 जा 108 यानी कि 109 कैरी 10, 12 5 जा 60 70 कैरी 7, 12 6 जा 72 79 कैरी 7, 12 8 जा 96, 96 में 7 कर देंगे तो 103, यानी कि 1039092 1039092। ठीक है, सो आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का, पॉइंट नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपको चीजों को पहले फिगर आउट करना है, मतलब जो भी आप ये जो पूरा डेटा है इसको जितना इसका इजी वे में क्रक्स लिख सकते हो वो लिखो, एंड देन उसको क्वेश्चंस पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप अपना चीजों को फिगर आउट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड प्रोडक्ट इन द थर्ड शॉप, second product and the what percent of the total revenue has been generated from the sale of the second product in the third shop यानी कि इसकी बात कर रहा है 6x, and fourth product in the second shop, fourth product in the fourth product in the second shop यानी कि इसकी बात कर रहा है। इन दोनों का सम कितना हुआ, 6x प्लस 3x, यानी कि इन दोनों को मिला के 9x हुआ, और कितने पे हुआ, 100x पे ही तो हुआ है, यानी कि कितना आंसर होना चाहिए, 9%। ठीक है, ये तो आसान था, क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही आसान था, एकदम क्लियरली दिख रहा था सामने। क्वेश्चन नंबर 1 भी इनफैक्ट आसानी था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सेकंड एंड द थर्ड शॉप स्टॉप सेलिंग, अच्छा कह रहा है कि अगर सेकंड और थर्ड शॉप जो है वो कुछ बेचना बंद करे, क्या बेचना बंद करे देखते हैं एक बारी। इफ द सेकंड एंड द थर्ड शॉप स्टॉप सेलिंग द सेकंड एंड द थर्ड प्रोडक्ट इन द प्रेजेंट ईयर, सेकंड और थर्ड शॉप ये सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दे, यानी कि इन चार चीजों को वो बेचना बंद कर दे। ठीक है, and everything else remains the same as last 1 year, what will be the percentage reduction in the sales in this year with respect to the previous year? कितना सेल्स में रिडक्शन हो जाएगा, इनको सम कर लेते हैं बस इतना, 9 से 15, 15 4 19, 19 से 25, यानी कि 25x का रिडक्शन हो जाएगा, 100x में से 25x हट जाएगा, यानी कि 25% का रिडक्शन हो चुका होगा। ठीक है, ये भी एकदम आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि what will be the total sales generated in the last 1 year by all the 4 shop if the minimum value of the average sales by any product in the 4 shop is 1,23,455। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। what will be the sales generated in the last 1 year by all the 4 shop if the minimum value of the average value of any product, मिनिमम वैल्यू किसकी होगी, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा पाए, मिनिमम एवरेज वैल्यू किस प्रोडक्ट की होगी, प्रोडक्ट 1 की एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 10x। एवरेज का मतलब क्या होता है, 40x डिवाइडेड बाय 4, यानी कि टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 की कितनी आ रही है, 10x, प्रोडक्ट 2 की कितनी आ रही है 7.5x 7.5x, प्रोडक्ट 3 की कितनी आ रही है 5x, प्रोडक्ट 4 की कितनी आ रही है 2.5x, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्टेक्स्ट है ये प्रोडक्ट 4 के बारे में। What will be the total sales generated in the last 1 year by all the 4 shop if the minimum value of the average sales by any product in the 4 shop is 1,23,445, यानी कि 2.5x की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1,23,455। ठीक है, और अपने को टोटल सेल्स पूछा हुआ है, टोटल सेल्स निकालना है, यानी कि इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा, बिकॉज टोटल सेल्स मतलब 100x की तो बात हो रही है, मैंने शुरुआत में ले रखा था ना टोटल सेल्स अपने को 100x, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लें बेसिकली हो जाएगा, तो यानी कि 25x कितना आ जाएगा 12,34,550
क्योंकि हमने बस एक 10 एडजस्ट कर दिया, और इसको 100x करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 4 0 0, 4 5 20, कैरी 2, 4 5 20, 22, यानी कि 200 का आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए कुछ होना चाहिए। 4 5 20, कैरी 2, 4 4 16, 18, कैरी 1, 4 3 12, 13, कैरी 1, 4 2 8, 4 2 8, 9, और 4 1 4, तो कितना आना चाहिए, 49,38,200, ऑप्शन नंबर ए अपना आ रहा है। ठीक है, मॉडरेट सेट, बस इसके अंदर जो भी पूरी कहानी थी ये इस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को लेके थी। अगर आपने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को कनेक्ट कर पाए हो तब ये सेट एकदम सेटर था। अगर आपने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को मतलब ज्यादातर लोग फर्स्ट गो में तो ये सेट करते ही नहीं, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आता कि यार ये दिया क्या है, इसको अप्रोच कैसे किया जाए। सो एकदम ये नया टाइप ऑफ डीआई का सेट था, एंड एक बार कर लोगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।